Hello everyone, dear students. As you all know, and I think you would have seen the syllabus of our 8th class, Honeydew, most of the chapters had been removed from that syllabus. So, the last poem which we did last week, there we have ended our syllabus of English. Okay, so now we are going to revise the exercises of the chapter from the beginning. Okay, from chapter 1, because I have only explained you the chapter, not the exercises. So better understand the exercises which I am going to explain you now. So the exercise working with language of chapter 1, the best Christmas present in the world. So now we are going to revise the chapters in this way. And beside this, if you want to ask anything else, you may ask me or message me. Okay, so let's start with the exercises working with language. Now here look at the sentences from the story. I spotted it in a junk shop. See the words which are in italic. ठीक है, spotted it in a junk shop in Bridport. The man said it was made in the early 19th century. This one was in a bad condition. Now the italicized verbs are in the past tense. The spotted, said, was, ये past tense में है. ठीक है. They tell us what had happened in the past before now. यानी कि ये जो 3 वर्ड्स है ये बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ. ठीक है, बिफोर नाउ, अभी से पहले. It presents the events, actions that are completed in the past, and these are also included in simple past tense. Now I think everybody knows the formula of that is subject plus verb second form, okay, plus object. तो यही चीज़ हम अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं in this exercise. Now read the passage below and underline the verbs in the past tense. ठीक है, अब ये जो पैसेज हम पढ़ेंगे इसमें जो वर्ड्स पास्ट टेंस में हैं वी आर गोइंग टू अंडरलाइन दोज वर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट इज अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन. तो विच इज़ द पास्ट टेंस वर्ड हियर इज गॉट, सैट. ओके, द कंपार्टमेंट was empty except for one lady. She took her gloves off. A few hours later, the police arrested the man. They held him for 24 hours and then freed him. So these all words are in simple past tense. Okay. Now look the sentence which are given below. The veneer had lifted almost everywhere. Now here the word had lifted. Both fire and water had taken their toll on this task. Now the word had lifted and had taken. ठीक है, तो what this word shows that they are in past perfect tense. Okay, the word had shows that they are in past perfect tense. The author found and bought the book in the past. अब इस सेंटेंस को देखना. The author found and bought the desk in the past. The desk was damaged before the author found it and bought it. So here was damaged. Okay. Fire and water had damaged the desk before the author found it and bought it. Now here one more sentence is added that fire and water had damaged the desk before the author found it and bought it. Now here I want to explain you the thing कि अगर एक सेंटेंस हो, ठीक है, बड़ा सेंटेंस, और इसमें आप देखोगे कि फाउंड जो है सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, और हैड डैमेज, हैड जो लगा रखा है और डैमेज के साथ वो है पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो हाउ यू विल कम टू नो कि कौन से वर्ड के साथ यानी कौन से वर्ब के साथ हमको हैड लगाना है. ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देखोगे
How you will come to know that when we have to apply had in the sentence? Just see, had, before, the word before यानी कि फाउंड यानी मिलना और डैमेज का मतलब भी एक वर्ब है, एक एक्शन है। अब इन दोनों वर्ड में से जो एक्शन पहले हो चुकी है उसके साथ हम हैड लगाते हैं, ठीक है। यानी कि इसके पहले के ऑथर को वो डेस्क मिलती, वो डेस्क पहले ही डैमेज हो चुकी थी, ठीक है। यानी एक एक्शन होने से पहले जो एक एक्शन पहले ही हो जाता है उसके साथ हम हैड लगाते हैं। अंडरस्टूड? We use verb forms like had damage for an event in the earlier past. Okay. If there are two events in the past, अगर past में दो events होते हैं, ठीक है, दो verb होते हैं, we use the had form for the event that occurred first in the past. First in the past यानी कि हम had किसके साथ लगाते हैं? जो इवेंट पहले होता है पास्ट में, ठीक है, उसके साथ हम हैड लगाते हैं। और जो सेकेंड वर्ब होता है उसके साथ हम हैड नहीं लगाते हैं। वी ऑल्सो यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो दैट समथिंग वॉज विश्ड फॉर, एक्सपेक्टेड और अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड वन, मुझे हमेशा इस चीज़ की इच्छा थी, ठीक है। तो किसी भी विश के लिए या एक्सपेक्टेशन के लिए भी हम हैड यूज़ करते हैं बिसाइड दिस sentence. Discuss with your partner the difference in meaning in the sentences below. अब ये जो सेंटेंस दे रखे हैं दो, अब इसमें आपको देखना है कि क्या डिफरेंस है। एक में तो हैड लगा रखा है और एक में हैड नहीं लगा रखा है, जबकि मैंने आपको कहा है कि दोनों में से जो एक्शन पहले होता है उसके साथ हैड लगता है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। When I reached the station, the train left. यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन रवाना हुई। वो स्टेशन पहुंचा और उसके सामने वो ट्रेन रवाना हो गई, ठीक है। द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर दोनों एक्शन साथ में हुए, ठीक है। उसका स्टेशन पे पहुंचना और ट्रेन का चलना, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी वो जब स्टेशन पहुंचा तो उसके पहले ही ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी, है ना। उसके सामने नहीं, उसके पहुंचने से पहले ही ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। यानी कौन सा एक्शन पहले हुआ? ट्रेन का वहाँ से चले जाना। सो हियर वी हैड यूज द वर्ड हैड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस हियर। नाउ वी आर गोइंग टू फिल दिस exercise. Fill in the blanks using the correct form of the verbs in brackets. ओके, तो यहाँ पर हमको verbs की फॉर्म जो ब्रैकेट में दे रखी है वो यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। My little sister is very naughty. When she, what will come here? Came back. Okay, from school yesterday. She had tear her dress. तो tear अब had आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर tear की थर्ड फॉर्म क्या होगी? had torn her dress. You know we always use had with verbs third form, है ना। had होता है उसके साथ verb की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। We asked her, अब had happened है तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे asked, ठीक है। asked her how it had happened. happened यानी यहाँ पर NED आएगा। how it had happened. she said, यहाँ पर आएगा said. she have quarrel का क्या हो जाएगा? had quarreled. ओके, ED आएगा quarreled के साथ। with a boy. she have और बीट है तो she had, और बीट का क्या हो जाएगा? beaten, ठीक है। she had beaten him in a race. he have try दे रखा है तो he had try का क्या हो जाएगा? tried to push her. she have दे रखा है तो यहाँ पर हम had लिखेंगे, ठीक है।
शी हैड, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड। द टीचर एंड सो ही हैड, चेज का हो जाएगा चेज्ड हर। शी हैव और फॉल है तो क्या हो जाएगा, शी हैड, फॉल का हो जाएगा फॉलन। शी हैड फॉलन डाउन एंड हैव टीयर तो क्या हो जाएगा, हैड टोन हर ड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से वी आर गोइंग टू फिल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस इन दिस blanks. Now next see third exercise, underline the verbs and arrange them in 2 columns in past and earlier past. ठीक है, earlier past यानी कहाँ पर हमको had लगाना है, सॉरी had जिसके साथ आएगा वो हमको earlier past में लिखना है और past tense में हमको verb की second form लिखनी है। ठीक है, तो ये जो दे रखा है यहाँ पर ये आपको अपनी कॉपी में करना है, ये एक्सरसाइज और जो ऊपर मैंने अभी एक्सप्लेन की, बोथ एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ओके, तो जस्ट एज अ रफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस टेबल। एक मैं ए वाला सेंटेंस आपको बताऊंगी, बाकी ये टेबल आपको खुद को पूरा करना है। ठीक है, तो पास्ट, माई फ्रेंड्स क्या आएगा, सेट, सेट इज द पास्ट टेंस वर्ड। टू सी द केव इन द नेक्स्ट टाउन, बट आई स्टेड, स्टेड आएगा एट होम, बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी, तो हैड सीन आएगा अर्लियर पास्ट में। ठीक है, और सेट और स्टेड, ठीक है, इट विल कम हियर in the past tense. So the remaining 3 sentences you have to do on your own. Clear? Now next is the dictionary work. अब इसमें जो बताया गया है फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया गया है। फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब्स यू नो सबको पता है, एक्शन वर्ड जो होते हैं उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है 2 वर्ड को मिलाकर एक मीनिंग का वर्ड बनना। ठीक है, जो मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक तो वर्ब होता है, ठीक है, और एक प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब होता है। और वर्ब और प्रीपोजिशन इन दोनों को मिलाकर फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। ठीक है, और ये मीनिंग्स में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऑफ देयर पार्ट्स। मतलब ये कि जैसे एक एग्जांपल मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो बाकी जो वर्ड्स है, ठीक है, इनके आपको बुक में से ढूंढने हैं सेंटेंसेस। ठीक है, यानी इसी फर्स्ट चैप्टर में से ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स ढूंढकर आपको लिखने हैं। ठीक है, इन योर नोटबुक। सो बर्न आउट, अब बर्न का मतलब क्या होता है, जलना। ठीक है, बर्न का मतलब होता है जलना, और आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, है ना, आउट मीन्स बाहर। तो बर्न जलना, बाहर जलना, तो ये कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो बर्न आउट का मतलब इट इज़ समथिंग डिफरेंट। बर्न आउट का मतलब आग लगने से डिस्ट्रॉय हो जाना, ख़त्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, सो द वर्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम द वर्ड विच आर गिवन हियर। अब लाइट आपका मतलब एक्साइटमेंट, लाइट का मतलब होता है या तो वो लाइट जो हम जलाते हैं वो, है ना, और लाइट का मतलब हल्का भी होता है। तो यहाँ पर लाइट जो है वो वर्ब है, लाइट का मतलब जलाना, और आपका मतलब ऊपर, ऊपर जलाना तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो लाइट आपका मतलब होता है एक्साइटमेंट। ठीक है, तो हियर इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग। okay, different of meaning of the phrasal verbs. It is a verb and it is a preposition. So you have to make the sentences, find out the meaning of this remaining 3 words, okay, and write down the sentences in which they occur. यानी और फिर आपको इसी चैप्टर में से इन सारे वर्ड्स जिस जिस सेंटेंस में है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, सो हियर वी हैव completed this part of our exercise. Now next is noun phrase.
नाउन का मतलब, नाउन फ्रेज का मतलब ये होता है कि नाउन, कोई भी नाउन, चाहे बॉक्स हो, पेन हो, पर्सन हो, एनिमल हो, ठीक है, और इसके साथ जो फ्रेजल वर्ड लगता है जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसके साथ हम कोई भी एडजेक्टिव लगाते हैं, नाउन फ्रेज कहा जाता है। जैसे कि बॉक्स, बॉक्स क्या है? नाउन है, ठीक है। इसके साथ हमने कौन से एडजेक्टिव यानी कौन सी क्वालिटी बताई है बॉक्स की, कि बॉक्स कैसा है? स्मॉल भी है, ब्लैक भी है और टिन का बना हुआ है। सो दीज थ्री आर एन एडजेक्टिव वर्ड्स, और ये तीनों मिलाकर नाउन फ्रेज बनते हैं। अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, सो दिस इज कॉल्ड एज द नाउन phrase. So here on the next page you could see of your text, ये जो टेबल दे रखा है नाउन और एडजेक्टिव्स का, तो आपको क्या करना है, एलिफेंट से रिलेटेड कौन कौन से इसमें से एडजेक्टिव्स है वो सिलेक्ट करके एलिफेंट के सामने लिखना है। फेस कैसा होता है? राउंड होता है, चेयरफुल होता है ना, चबी होता है, तो ये हमको फेस के सामने इसमें से वर्ड सिलेक्ट करके लिखना है। बिल्डिंग कैसी होती है? लार्ज होती है, ठीक है, और मीडियम साइज्ड भी होती है, मल्टी कलर भी होती है, लार्ज होती है। तो जो भी है बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए वो सारी इसके सामने आप लिखोगे। वाटर कैसा होता है? ब्लू होता है, कोल्ड होता है ना। तो राइट दीज वर्ड्स एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ दीज वर्ड्स यू हैव टू राइट द एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू दिस थिंग्स। एक बार मैं बोल देती हूँ, जैसे एलिफेंट होता है वो स्ट्रिप्ड होता है, एनॉर्मस होता है, वाइल्ड होता है। फेस कैसा होता है? राउंड, चीयरफुल, चबी होता है, ठीक है। बिल्डिंग कैसी होती है? सर्कुलर, लार्ज, मल्टी कलर्ड। वाटर कैसा होता है? ब्लू, कोल्ड। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, थैंक यू।